तो लास्ट क्लास में हमने इनपुट लेना सीखा था, हाउ टू एक्सेप्ट एन इंटीजर और अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और अ कैरेक्टर और अ स्ट्रिंग। अभी कैरेक्टर की बात हुई है, लास्ट हमारा जो है डेटा टाइप दैट इज स्ट्रिंग। Difference between char and string is that char is a single character that can be an integer. String accept word like Ayush. Very good. It can be a collection of number of characters that can include digits, symbols, and alphabets as well, like anybody's name or address or email ID, whatever it is, and that value should be entered in string data type. So suppose I want to accept somebody's name, then what I need to do, I'll have to change the message, enter name, and now the data type will be string. बट स्ट्रिंग देखिए, बाकी जो डेटा टाइप है उनके कीवर्ड्स में हम हमेशा लोअर केस यूज करते हैं, बट एज फार एज व्हेन इट कम्स अबाउट स्ट्रिंग देन S should be capital. Okay, now I'm giving name to the variable that is S. So to accept a string we need to use a function that is br.readline. That is उसके अलावा कोई आपको और कहीं कुछ नहीं लिखना, ना पार्सिंग करानी है ना कुछ करनी है। br.read and br.readline दो functions हैं। br.read is used to accept a character and read line accepts the entire line. So that is why this read line function is used here. So suppose I want to welcome and I want to join this welcome with a name S. Now I will compile this and now I will close it and enter name. So if I write here Ayush, welcome Ayush, or if I write Ayush say, then entire string will be accepted. एक लाइन में आप जो लिखेंगे वही एक्सेप्ट होगा, आप एंटर करके नेक्स्ट लाइन में नहीं जा सकते। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर है, ये तो इतना सब हो गया। सो ये तो हमने सीखा था लास्ट क्लास में कि हाउ टू एक्सेप्ट वैल्यूज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. Like I told you in earlier sessions that while using this switch case, we need to use input statement. Because first of all, we need to print that entire choices, list of that choices should be there. User has to opt out of the given choices. So user has to input his choice in that terminal window itself. So it is not possible until unless we know how to accept the value. तो ये वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए एक हमारे इनपुट स्ट्रीम रीडर स्टेटमेंट होते हैं। एक और तरीके के हमारे स्ट्रीम रीडर जैसे ही एक और स्टेटमेंट होता है इनपुट स्टेटमेंट, जिसको हम यूज करते हैं एक और क्लास से। यहाँ पे आपने कौन सी क्लास यूज की, यहाँ पे आपने यूज की जो क्लास यूज की थी वो आपकी थी इनपुट स्ट्रीम रीडर. The class was input stream reader. Package was java.io.star and the function was like br.readline और br.read और भी बहुत से functions हैं इसके अपने. लेकिन एक और हमारी क्लास होती है स्कैनर क्लास, जिससे हम इनपुट स्टेटमेंट लेते हैं और अपनी इनपुट को एक्सेप्ट कराते हैं. एक चीज और आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं तो आपने देखा है कि 2 lengthy lines are there which you need to write, but if you want to ignore them, then what you can do, you can convert this entire line into single line. One single line can also be there. जैसे मैं ये 2 लाइंस को डीएक्टिवेट कर रही हूँ, अभी हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते थे, स्टार्टिंग तो हमें ऐसे ही करनी है, इनपुट स्ट्रीम रीडर ISR is equal to new input stream reader और अब ब्रैकेट में लिखेंगे न्यू बफर्ड रीडर ऐसे, और फिर इसी के अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे system.in और लास्ट में हम 2 ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे एंड देन वी विल क्लोज दिस स्टेटमेंट विद दिस सेमीकोलन. तो in spite of writing these 2 lines, you can write this whole statement in one single line. So this choice is yours, whatever in which you are comfortable, you can use that option. चाहे आप वो दोनों लाइन लिखो तो भी वही मतलब है, इसे लिखोगे तो भी वही मतलब है. इसे हम कंपाइल करेंगे. ओह, यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम रीडर नहीं लिखना है, सॉरी, यहाँ पे लिखना है आपको बफर्ड रीडर. Buffered reader br compile. उल्टा लिखते हैं buffered
न्यू इनपुट स्ट्रीम, इस तरह से। अब हम इसे कंपाइल करेंगे तो वो 2 लाइन लिखो या आप ये 1 लाइन लिखो, दैट इज अप टू यू। कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे और देखिए बिल्कुल वैसे ही आप वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे आप इससे पहले कर सकते थे। तो आपको अपना टाइम सेव करना है, आप कंफर्टेबल है सिंगल लाइन स्टेटमेंट में तो आप सिंगल लाइन यूज करते हैं, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल इन दोज 2 लाइंस क्या करना है, बस ध्यान आपको ये रखना है कि पैकेज नेम शुड बी io.star एंड हियर यू हैव टू राइट थ्रोज IO एक्सेप्शन। ऑल्दो ये थ्रोज IO एक्सेप्शन का अभी आपके लिए कोई काम नहीं है, this thing will come in your 11th standard when you will learn how to throw exception। तो उसके लिए ये throws IO exception यूज होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, बट आपको ये इनपुट स्ट्रीम रीडर अगर स्टेटमेंट यूज करना है तो यू कांट यूज these स्टेटमेंट until unless you write this thing here। तो ये जो पीस ऑफ कोड है दिस इज एसेंशियल टू यूज दिस स्टेटमेंट। तो ये तो हो गया आपका इनपुट स्ट्रीम रीडर, इसको हम क्लोज करते हैं। अनदर मेथड ऑफ एक्सेप्टिंग वैल्यूज ड्यूरिंग द टर्मिनल विंडो, वो क्या होता है, दैट इज आई टोल्ड यू स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास में आप कैसे यूज करेंगे, तो स्कैनर क्लास के लिए हम फिर आपको बता रहे हैं, अभी हमने नाम लिख लिया अपने यहाँ पे स्कैन क्लास का नाम एंड क्लास स्कैन। अब जैसे हम वहाँ पे पैकेज इनवाइट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले पैकेज इनवाइट करना है। यहाँ पे जो पैकेज आप इनवाइट करोगे दैट इज अनदर इम्पोर्ट स्टेटमेंट तो रहेगा ही, बट नाउ द नेम ऑफ द पैकेज विल बी java.util.star। ये है एक्चुअली, तो ये यूटिलिटी पैकेज होता है लेकिन इसको नाम दिया गया है यूटिल, एंड स्टार मीन्स ऑल द फंक्शंस, ऑल द क्लासेस which are the part of this utility package। तो as soon as you write here star, you will be allowed to use and you will be given access to each and every function and class of this package। बस इतना लिखना है, then बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप लिखते हो वही चीजें आप लिखेंगे। then you have to start with your main function, public static void main, no nothing should be written here, कोई throws IO exception नहीं, कुछ नहीं। now you have to create an object so that you may create so that you may use the functions of this package। तो अगर आपको object create करना है तो first of all you need to write the name of the class and the class here is scanner। scanner में S capital रहेगा। ऑब्जेक्ट का नाम आप XYZ कुछ भी रख लो, आप आयुष भी रख सकते हो, दैट डजंट मैटर। बस आपको फिर ऑब्जेक्ट को अगर आप नाम आयुष रखते हो तो आपको जब फंक्शन कॉल करने होंगे तो आयुष डॉट ऑपरेटर यूज करना होगा। यहाँ पर हमने अपने ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया SC। न्यू कीवर्ड यूज करेंगे टू क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट, न्यू स्कैनर, अगेन द नेम ऑफ द क्लास एंड इन ब्रैकेट आई विल राइट सिस्टम डॉट इन। सो बस दिस स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, इतना हो गया, दैट्स मोर देन एनफ। वैसे तो देखिए बेटा ये इसमें यूजर का कंफर्ट लेवल देखा जाता है, मतलब आप किस में कंफर्टेबल हो, कि आप इनपुट स्ट्रीम रीडर में कंफर्टेबल हो तो आप इनपुट स्ट्रीम रीडर यूज कर सकते हो, आप स्कैनर में कंफर्टेबल हो तो आप स्कैनर यूज कर सकते हो, जब तक कि स्पेसिफिकली कहीं मेंशन ना हो। जैसे एग्जाम में सपोज उन्होंने बोल दिया कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट दिस एंड दैट यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट इनपुट स्ट्रीम रीडर और यूजिंग स्कैनर क्लास, तब तो जो भी स्पेसिफिकली मेंशन्ड है वो यूज करना है। अदरवाइज स्कैनर क्लास को हम प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि पहली चीज तो ये है कि स्कैनर क्लास में आपके जो स्टेटमेंट कोड्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब आपको बहुत लंबा सिंगल लाइन कोड या डबल लाइन कोड नहीं लिखना होता, बहुत सारी चीजें आपको ध्यान नहीं रखनी, लाइक यू नीड नॉट टू राइट हियर थ्रोज IO एक्सेप्शन। बट स्ट्रिंग इसके साथ ही साथ स्ट्रिंग पे भी बहुत सारे जो फंक्शन है स्ट्रिंग से रिलेटेड वो स्कैनर क्लास इजीली उन्हें हैंडल कर सकता है, और उसमें आप इनपुट स्ट्रीम रीडर पे वो चीजें नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बहुत लंबी कोडिंग करनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिकली अगर स्ट्रिंग से रिलेटेड आप काम करते हैं तो आपको स्कैनर यूज करना होता है। बट ये चीज हम जो है अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम में जिस तरह से कहा जाए वैसे ही आपको करना है। अगर उन्होंने कुछ कहा ही नहीं कि यू हैव टू यूज दिस स्टेटमेंट और दैट वन, तो फिर आप स्कैनर प्रेफर करना, क्योंकि स्कैनर में आपका कोड छोटा होता है, तो जितना छोटा कोड लिखना होगा उतने ही स्कोप कम रहेगा मिस्टेक्स का, तो इसलिए आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमने वहां पे यूज किया अपना इनपुट स्ट्रीम रीडर और हमने इनपुट लिया, ऐसे यहाँ पर भी हम डिफरेंट डेटा टाइप्स का इनपुट कैसे लेंगे। तो सबसे पहले हम इनपुट ले रहे हैं इंटीजर का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर हम मांग रहे हैं एंटर योर सैलरी मांग रहे हैं, मान लीजिए हम एम्प्लॉय की, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया, ऑब्वियसली सैलरी हम इंटीजर में एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे ले लिया। और अब हमें यहाँ पे लेना है तो उसके लिए हम कहेंगे SC डॉट नेक्स्ट
INT का I कैपिटल रहेगा और कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करके क्लोज करेंगे. So next int is a function which is already defined in the memory of this utility package, and to use that function which is a part of utility package, we need to use this object, this sc object I have created earlier here, this object, and with the help of this dot operator and using this object I can use the function, I can get the permission to use this function, and next int is the function which will help me to accept any integer value. Yeah. तो अभी ये हो गया. अब सपोज हम उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वापस से हमने लिख दिया system.out.print after adding bonus. Suppose a fixed amount of bonus is there that I have to add in my integer, plus bonus है suppose 10,000 प्लस हमने वेरिएबल है हमारा SAL और ये ले लिया. और अब हम मेन को क्लोज करेंगे, क्लास को क्लोज करेंगे, कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे, और अब हम इनपुट यहाँ पर लेंगे. देखिए एंटर योर सैलरी, तो जो भी अमाउंट हम डालना चाहते हैं, 25,000 डाला, एंटर करेंगे तो देखिए 25,000 हमने सैलरी डाली. आफ्टर एडिंग बोनस माई सैलरी इज नाउ 35,000. So this is how we can accept integer, a single integer or a number of integers. Like if I have to ask 3 numbers, then there should be 3 variables and the message will be like enter 3 numbers. तो आपको पता ही है कि किस तरह से अकॉर्डिंगली आप चेंजेस करेंगे. नाउ सच एज आपने यहाँ पे इंटीजर लिए, अभी अगर आपको यहाँ पे लेना हो कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, डबल वैल्यू, तो मान लीजिए आपने यहाँ दे दिया एंटर योर हाइट या परसेंटेज. तो परसेंटेज के लिए डेटा टाइप अब हमारा क्या हो जाएगा, डबल. परसेंटेज के लिए PER ले लिया, और नेक्स्ट INT की जगह नाउ वी विल यूज फंक्शन नेक्स्ट डबल. डबल का D कैपिटल रहेगा. बस इतना ही करना है. और फिर यहाँ पे परसेंटेज इज कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे, परसेंटेज दे दिया 98.87. So this is how we can accept a double value here. Now comes about string and char. तो यहाँ पर जो है स्कैनर में char कुछ नहीं होता. char डेटा टाइप यहाँ होता ही नहीं है. अगर आपको सिंगल कैरेक्टर भी लेना है तो आपको यूज डेटा टाइप स्ट्रिंग ही करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा. और स्ट्रिंग लेना है तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग ही लेना है. जैसे यहाँ पर अगर आपने कहा एंटर योर नेम, तो नेम लेंगे, तो अब यहाँ पे डेटा टाइप रहेगा स्ट्रिंग s इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन इज द फंक्शन वेलकम. कंपाइल करेंगे sc डॉट, कंपाइल करेंगे, क्लोज करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पे नाम देंगे और एंटर करते ही वेलकम आयुष सिंह. और अगर कैर लेना है तो भी टाइप रहेगा आपका स्ट्रिंग ही, लेकिन फिर आप यहाँ पे लिखेंगे बस sc डॉट नेक्स्ट. अब कंपाइल करा, क्लोज करा और फंक्शन को कॉल किया. अब अगर आप लिख भी देते हो, मान लो आयुष, हमने पूरा लिख दिया आयुष, तो भी देखिए वो आपको जो है यहाँ पर ले लेता है. मतलब क्योंकि ये देखिए उस फंक्शन की अपनी वो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो नेक्स्ट से भी वो ले लेता है. हालांकि इसके लिए हम आपको आगे बताएंगे हैज नेक्स्ट भी यूज किया जाता है, पर वो अभी हम नहीं बताएंगे. ये चीज जो स्ट्रिंग और कैरेक्टर को इंडिविजुअली कैसे काम करना है, वो चीज हम आपको स्ट्रिंग का चैप्टर आएगा तब हम आपको वो चीज अच्छे से समझाएंगे. अभी तो खैर आपके आगे बहुत आगे ये सब चीजें आने वाली हैं. तो फिलहाल इस तरह से आपने देखा कि स्कैनर के साथ भी आप यूज कर सकते हैं और इनपुट स्ट्रीम रीडर से भी आप ये काम कर सकते हैं. अब हम अपना बात करते हैं उस प्रोग्राम की जिसमें हमने बताया था कि चॉइस हमें लेनी है. तो चॉइस के लिए जैसे हमने यहाँ पे वही तो बनाया था, ये बनाया था शायद लिस्ट, है ना. तो अभी तो क्या था, हमने वहां पे चॉइस डाल दिया था
बट अब हमें मेन के अंदर नहीं डालना है। हम चाहते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हमारा प्रोग्राम जो है हमसे यूजर से इनपुट मांगे। तो अगर वो इनपुट आप इनपुट स्ट्रीम रीडर से दे रहे होते हैं तब तो आपको लिखना है इनपुट import java.io.star। लेकिन अगर आप स्कैनर से करेंगे, और आपके स्कूल में भी स्कैनर से ही ज़्यादातर कराया जाएगा, तो java.util.star हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और फिर जब हमने ये कर लिया तो ऑब्वियसली अब सबसे पहले आपको क्या बनाना है, अब आपको बनाना है ऑब्जेक्ट, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट बनाए तो आप आगे काम कर ही नहीं सकते। तो ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मेन के इमीडिएटली बाद ये आप काम यहाँ पर होगा। तो हमने लिख दिया अपने ऑब्जेक्ट स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। फिर हमने मेन्यू प्रिंट करा लिया और अब हम मांगेंगे चॉइस। तो इसी में लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर योर चॉइस। और हमने आगे स्पेसिफाई भी कर दिया कि 1 दीजिए या 2 दीजिए या 3 दीजिए, इतना हमने यहाँ पर स्पेसिफाई भी कर दिया। और उसके बाद हम स्कैनर, अब चॉइस हमें मांगनी है तो चॉइस के लिए हमको इंटीजर 1 2 3 देना है। तो चॉइस के लिए हमने ये ले लिया int choice इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। ये फंक्शन हमें अप्लाई करना होगा। और अब पूरा का पूरा प्रोग्राम वैसे के वैसे ही रहेगा, आप कुछ नहीं चेंज करना है। इतना हुआ और अब हम इसे कंपाइल कर रहे हैं। अब हम इसे कंपाइल कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। और देखिए अब हम मेथड कॉल कर रहे हैं तो कुछ नहीं मांग रहा, सीधे कहाँ ले गया हमको, हमारे टर्मिनल विंडो में लेके गया और हमसे पूछ रहा है। पहले हमें मेन्यू दिख गया, नेम ऑफ 3 कंट्रीज, नेम्स ऑफ 3 स्पोर्ट्स, नेम्स ऑफ 3 प्लैनेट्स। और अब पूछ रहा है एंटर योर चॉइस। तो अब चॉइस मांग रहा है तो चॉइस हमें देनी है। हमने दे दिया 2, तो एंटर करते ही देखिए आ गया हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन। हमने फिर रन कराया इसको। अभी हमने दे दिया चॉइस 1, तो दे दिया उसने 3 कंट्रीज के नाम। और अब हमने लास्ट चॉइस दे दी अगर 3, तो वो दे रहा है आपको नेम्स ऑफ 3 प्लैनेट्स। हाँ, अगर इनवैलिड कोई इनपुट देते हैं जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था, तो उसी के लिए क्या किया है, उसके लिए हमने वहाँ पे डिफॉल्ट क्लॉज लिखा था, जिसकी वजह से आपको डिफॉल्ट में लिखा हुआ मैसेज प्रिंट हो गया कि इनवैलिड इनपुट, प्रेस 1 और 2 और 3। तो इस तरह से आप स्विच केसेस का यूज करते हैं। और स्विच केसेस में, स्विच के अंदर केसेस होते हैं। डिफॉल्ट केस अगर आप मिस कर देते हैं, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि यदि आप डिफॉल्ट केस को मिस कर देते हैं तो डिफॉल्ट केस मिस मतलब कंपलसरी नहीं है। अगर आप उसे मिस भी कर रहे हैं तो वो कंपलसरी नहीं होता। बस प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं और कोई ऐसा इनपुट यूजर दे देता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, माने यू हैवंट गिवन द चॉइस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। आपने 3 चॉइसेस दी थी एंड यू वर एक्सपेक्टिंग ईदर 1 और 2 और 3, बट इफ यूजर हैज गिवन सम अदर अनएक्सपेक्टेड इनपुट, तो क्या है, तब फिर एंटर करने पर, उस चॉइस को फीड करने पर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो दिस काइंड ऑफ अ प्रोग्राम इज अ नॉन रिस्पॉन्सिव प्रोग्राम। एंड नॉन रिस्पॉन्सिव प्रोग्राम मीन्स कि प्रोग्रामर हैज लेफ्ट सम लूप होल, भाई कोई कमी रह गई, ये चीज है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। आप जब प्रोग्राम बनाओगे तो आप इस ऑब्जेक्टिव से बनाओगे कि किसी तरह का कोई लूप होल ना रह जाए प्रोग्रामिंग में। अगर आप जाते हो, मान लीजिए एटीएम भी ऑपरेट करते हो और आप अपने मन से कोई भी ऑप्शन नहीं दे सकते हो, आप एटीएम में जाके विड्रॉ या डिपॉजिट ही करते हो। आप तो खैर विड्रॉ ही करते हैं, लेकिन आप जाकर के एटीएम वालों को बोल दो कि एक कैपुचिनो कॉफी भी आ जाए तो क्या थोड़ी ना आ जाएगी। तो इस तरीके की कोई चॉइस अगर आप कहीं भी देते हो तो वो आपको बताते हैं कि दिस इज एन इनवैलिड इनपुट। अगर फोन आप कर रहे हो और उन्होंने बोला कि प्रेस 1 टू रिचार्ज, प्रेस 2 टू फाइल एनी कंप्लेंट, प्रेस 3 टू डू दिस एंड दिस, बट अगर आपने कोई बटन ऐसा प्रेस कर दिया, लाइक आपने प्रेस कर दिया 8, तो कहेंगे कि प्रेस इधर 1 और 2 और 3, दिस इज नॉट इन अवर चॉइस। तो इसी तरीके से डिफॉल्ट का है कि डिफॉल्ट अगर हम मिस करते हैं तो दैट इज नॉट अ कंपलसरी स्टेटमेंट, माने इट विल नॉट क्रिएट एनी एरर, एरर जनरेशन नहीं होगा, एरर जनरेट नहीं होगी, बट उसमें प्रोग्राम जो है आपका वो 100% सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। अब बाकी ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ लिया जाए कि राइटिंग डिफॉल्ट क्लॉजेस कंपलसरी, तो इट्स नॉट नेसेसरी, यू कैन स्किप। सेकेंडली, अगर आप 2 केसेस के बीच में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं, कई बार ऐसे भी इंस्टेंसेस होते हैं कि यूजर नीड्स टू skip this break statement, तो what happens if I skip this break statement? तो ब्रेक स्टेटमेंट मिस करने से क्या होता है कि 2 केसेस ब्रेक नहीं होते। अब ब्रेक नहीं होने का मतलब ये है कि अगर किसी ने चॉइस दे दी 2, तो इसका मतलब सबसे पहले कंपाइलर यहाँ आएगा और ये केस मैच कर जाएगा
और मैच करने पर ये लाइन प्रिंट होगी. बट जस्ट बिकॉज द यूजर हैज नॉट रिटन एनी ब्रेक स्टेटमेंट, दिस केस ऑल्सो विल बी एग्जीक्यूटेड. केस 3 भी साथ में एग्जीक्यूट हो जाएगा. ये देखिए, ये भी कोई एरर नहीं है. ब्रेक स्टेटमेंट although it is necessary, but ऐसा नहीं है. in certain cases we used to skip that break statement. I'll tell you whenever this is needed. तो ये तो हमने यहाँ से कर दिया. इसको I'm closing this one and now I'm running my program. So suppose I have given 1, तो name of 3 countries आ रहे हैं. I have given 3, तो क्या हो रहा है, name of 3 planets आ रहे हैं. कोई इशू नहीं. लेकिन अगर हम यहाँ पर दे देते हैं 2, तो क्या होता है कि 3 स्पोर्ट्स भी प्रिंट हो रहे हैं, देखिए, और साथ ही साथ 3 प्लैनेट्स के नाम भी प्रिंट हो रहे हैं. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मिसिंग ब्रेक स्टेटमेंट, both the cases have been executed, and that is not a successful programming because you were supposed to execute one case at a time. तो ऐसे केस में, ऐसी सिचुएशन में आपका जो है ब्रेक स्टेटमेंट आपके लिए कंपलसरी होता है कि जब 2 डिफरेंट टास्क आप डिफरेंट केसेस में लगा के रखते हैं. बट अगर ब्रेक स्टेटमेंट मिस करते हैं तो पहला केस एग्जीक्यूट होने पर उसके बाद वाले सारे केसेस जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है. क्लियर है आयुष आपको इतना? Yes, ma'am. ओके. ये तो चीज हो गई हमारी, हम कैसे लिखते हैं और केस हम किस तरह से डिफाइन करते हैं. लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि ये केसेस जो हैं, these can be of different data types. Like these cases can be in the form of कैरेक्टर ऑल्सो. एक सिंगल कैरेक्टर के फॉर्म में भी ये कैरेक्टर्स ये आपके जो है लिए जा सकते हैं केसेस. जैसे ये चॉइस 1 2 3 हो ऐसा जरूरी नहीं है. ये चॉइस ए, बी और सी भी हो सकती थी. तो अगर चॉइस ए, बी और सी है तो ऑब्वियसली यूजर इज एक्सपेक्टेड टू टाइप ए और बी और सी, तो उसको वही देना है. और अगर वो देना है, इसका मतलब उसकी चॉइस किस फॉर्म में हो जाएगी, अब उसकी चॉइस होनी चाहिए कैरेक्टर फॉर्म में. तो कैरेक्टर के लिए यहाँ तो हम यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कैर डेटा टाइप होता नहीं और हमें लेना यहाँ कैरी है. तो या तो हम वो लें जो हम आपको आगे बताएंगे, फिलहाल अभी हम नहीं ले रहे हैं, अभी तो हम कैर जो हम ले रहे हैं. और यहाँ पर हम यूज करेंगे क्या, हम यूज करेंगे अपना वही इनपुट स्टेटमेंट, इनपुट स्ट्रीम रीडर वाला कैर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे br.read. हम ये फंक्शन यहाँ पर यूज करेंगे. आगे हम आपको बताएंगे कि कैरेक्टर में लेना है तो कैसे लेना है. ये दे दिया हमने यहाँ पर, ठीक है. और अगर ये दिया है तो ऑब्वियसली फिर आपको ध्यान रखना है कि आपको वही स्टेटमेंट लिखनी है, बफर्ड रीडर br. Ma'am, we will change the class. Obviously we have to. वो तो अकॉर्डिंगली सारी चीजें आपको चेंज करनी होगी, है ना. br equals to new buffered reader new input stream reader system dot in. ये लाइन भी आपको ऐड ऑन करनी पड़ेगी. देन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा throws IO exception, ये भी आपको लिखना पड़ेगा. और java dot io dot star यूज करना पड़ेगा. और इतना किया तो ये तो हमने यहाँ पे अपना लिख दिया, ये सब लिख दिया. पर अब जब चॉइस हमारी कैरेक्टर में आई है तो यहाँ पे भी तो आपको केस ए, केस बी और केस सी लिखना पड़ेगा. लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा कि ए बी सी अगर हमने लिखा है तो ये डायरेक्टली ऐसे एक्सेप्ट नहीं होंगे. देखिए हम कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगी. ये डायरेक्टली ऐसे एक्सेप्ट नहीं हो सकते बिकॉज दीज आर कैरेक्टर्स. व्हेनेवर द इनपुट इज गिवन इन कैरेक्टर फॉर्म इट हैज टू बी एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स. ये सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर रहना चाहिए क्योंकि कैरेक्टर ऐसे ही सिंगल कोट्स में होते हैं, तभी दे आर आइडेंटिफाइड एज कैरेक्टर, अदरवाइज दे आर नॉट आइडेंटिफाइबल. तो ये सिंगल कोट्स में आप एनक्लोज करेंगे. अब आप कंपाइल करिए, देखिए नो एरर इज देयर एंड देन आई विल रन माय प्रोग्राम. एंड नाउ आई हैव टू राइट ईदर ए और बी और सी, दोनों में, तीनों में से कुछ भी लिखे. अभी बी लिख दिया तो देखिए आपकी चॉइस एक्सेप्ट हो गई. ऐसे ही आप ए या सी लिख सकते थे. अगर आप उसके अलावा कुछ भी देते HIJ के तो वो आपको बता देता है इनवैलिड इनपुट. तो इस तरह से
आपने देखा कि चॉइस आप इंटीजर के फॉर्म में भी लेते हैं और चॉइस आप कैरेक्टर के फॉर्म में भी लेते हैं, और कैरेक्टर के फॉर्म में ABCD तो देखा ही, इसके अलावा और क्या कर सकते थे? इसके अलावा हम आपको नया प्रोग्राम बना के दिखा रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे कैलसी बना रहे हैं, एक 4 फंक्शन कैलकुलेटर आपको बना के दिखा रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमने लिख दिया एंटर 2 नंबर्स, और 2 नंबर हैं तो ऑब्वियसली एक रहेगा हमारा INT कुछ भी ले लिया A, इंटीजर डॉट पास INT, क्योंकि हम सेम क्लास यूज कर रहे हैं इसलिए ये फंक्शन हमें देने हैं, या मैं हटा ही देती हूँ आपके लिए। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये हटा देते हैं ये कर देते हैं। और अब जब ये किया तो आपको क्या लिखना है, इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, ये लिखा। अगेन INT B इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, ये दोनों इंटीजर एक्सेप्ट हो गए। अब हमने कह दिया एंटर एनी ऑफ गिवन सिंबल, हम यहाँ पे सिंबल दे रहे हैं, कौन से प्लस दीजिए या माइनस दीजिए, यहाँ पे प्लस कॉमा माइनस कॉमा ऑब्लिक फॉर डिवीजन, स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड ऑब्लिक फॉर डिवीजन, ये हमने यहाँ पे एंटर करा लिए। और अब चॉइस जो है हमारी तो वो अच्छा, ये तो कैरी रहेगी, ये लिखा। डॉट यही सेम लाइन यहाँ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ये हो गया। चॉइस लिए तो हमने यहाँ पे इसे चॉइस को एंटर करा लिया। अच्छा, चॉइस को हमने एंटर कराया, अभी क्लियर? नाउ इज इट ओके? No, ma'am, you have not closed the bracket of BR read line. Okay. Now I have to accept these, ये हमने ले लिया चॉइस में। अब now in spite of these alphabets, now I have to, what I have to do? I have to print this one. Now I have to perform some action. I simply don't have to print anything. First of all, I have to add these two integers and then I have to print the sum. So in this case, either I can declare another variable int c, and in that I will store the expression c is equal to a plus b, or I can do it directly also. So I will write the message sum is plus a plus b, that's it. ये हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। दूसरा केस हमारा है हाइफन का सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे कर दिया और फिर हम केस डिफाइन कर रहे हैं
थोड़ा गैप दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने क्या दिया, डिफरेंस इज a माइनस b, ये दे दिया। देन कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट इज a oblique b, and another case should be there, that will be Ma'am, A into B. yes, a into b, and last case is for oblique symbol, then I will write system dot out dot print quotient is and I will break this case also. This is how I can generate a 4-function calculator to perform addition, subtraction, multiplication and division. Now I will compile my program. Close. क्या हो गया भाई? प्रोजेक्ट क्लोज करके वापस से ओपन करना। क्या हो गया भाई? प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, ऐसा तो ठीक ही है। चलो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में देख लूंगी इसमें क्या एरर हो रहा है। कुछ कंपाइलर सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो तो हो गया है, कन्वर्जन तो हो गया ऑब्जेक्ट कोड में, पर ये आपका जो है उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहा टर्मिनल विंडो पे। मगर उसका कोई रीजन इसलिए नहीं है कि प्रोग्रामिंग कोड में कोई मिस्टेक है, प्रोग्रामिंग कोड बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड ऐसे ही लिखा जाएगा। आप चाहे तो अपने सिस्टम पे से बना के देख लीजिएगा, तो इस तरह से ही है, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा ये। इस मेरे इसमें मतलब कुछ प्रोसेस प्रॉब्लम हो सकती है मेरे सॉफ्टवेयर में, जिस वजह से ये रन नहीं कर पा रहा है, बाकी प्रोग्राम एकदम ठीक है।
तो ये देखिए, और इसके बाद अभी हम और भी डिस्कस करेंगे कि हम केसेस और कैसे लिख सकते हैं। तो अगली क्लास जो होगी हमारी, इट्स नॉट गोइंग टू बी टाइम, तो अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि डिफरेंट और केसेस हम किस तरह से ले सकते हैं और कौन कौन से तरीके के केसेस आप नहीं लिख सकते हैं, कौन से वैलिड है और कौन से इनवैलिड है। इतना ही रखते हैं बेटा। और आप अब अपने जो चैप्टर है कंडीशन वाला, तो उस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके कंडीशंस पे बेस्ड हो या आपके जो वी स्विच वाले हैं, आप देख लीजिएगा। जो आप ट्राई कर सकते हैं ट्राई करके देख लीजिएगा। जो आपको नहीं समझ में आए वो आप हमें बताइएगा, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। कंडीशंस वाले आपने क्वेश्चंस अपने एक्सरसाइज वाले कर लिए हैं कि छोटे हैं अभी? Yes, ma'am. Ma'am, I've done. You have done all the questions. How many were there? Ma'am, not all. Ma'am, not all. Ma'am, हाँ, six. नहीं तो आप उसमें सारे करके देख लो, ताकि अच्छी प्रैक्टिसिंग भी हो जाए एंड यू रिमेन इन टच विद योर सब्जेक्ट। ओके, जरूरी नहीं कि सारे एक दिन में करो, टारगेट बना लो एक दिन में 5 क्वेश्चंस करने, 5 प्रोग्राम आप बना के देख लो। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू डू टेल मी एंड आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। ओके Okay, ma'am. ओके देन दैट्स ऑल फॉर द डे आयुष। Thank you, ma'am. ओके।